Hello students, in today's class we are starting with a new chapter, that is quadratic equation, and first of all we'll start with the fundamentals of this particular chapter. तो ना पहले बात तो ये आती है कि यार ये quadratic equation में फर्स्ट वर्ड को अगर हम देखें तो what is the meaning of the word quadratic? Quadratic word means a polynomial or an equation in which the degree of the variable is 2. The highest power of the variable must be equal to 2. ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा. That is the concept of quadratic. And you already know the meaning of equation. जब भी is equals to का sign आ जाता है बीच में and on right hand side, left hand side you have some values, then it becomes an equation. So first of all I will tell you about the standard form कि यार standard form जो quadratic equation का होता है वो क्या होता है. तो standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. So this is the standard form of the quadratic equation, okay? And कई बार plus c को ये लोग इस साइड पे भी लिख देते हैं, so that also will be fine, but this is the standard form in general. x square plus bx plus c, जहां पे x square का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, x square का कोएफिशिएंट हो जाता है a, x का कोएफिशिएंट हो जाता है b, and c is the third constant term, okay? And because it's a quadratic equation, because degree is 2, then its roots also will be equal to 2. Roots मतलब कि x की values, मतलब x की कितनी values रहेंगी जो ये equation को satisfy करेंगी. So at most there will be 2 values that will satisfy this particular equation. जब हम लोग solve करेंगे आप लोगों को मिलेगा कि 2 values ऐसी हैं जो कि इस equation को satisfy करती हैं. Okay? तो ये हो गया हमारा standard form of the quadratic equation. Now after the standard form I will try to tell you about the concept of discriminant. Okay? Discriminant D. Discriminant क्या चीज होती है? Discriminant के बारे में जानते हैं. CRIMINANT. Discriminant बोलते हैं. Discriminant D. है ना, ये capital D रहता है. तो capital D is equals to the formula is B square minus 4AC. This is the formula of discriminant D. B square minus 4AC. And this ये जो discriminant हमेशा B कौन सा वाला B, ये वाला B, A ये वाला A हो गया, and this is C. So this is the formula of how we have to calculate the value of discriminant D. दो D आते हैं, एक D आपको AP में भी मिलेगा, वो small d रहता है, that stands for common difference. यहाँ पे capital D है, that stands for B square minus 4AC. Discriminant कहते हैं उसको, the symbol is capital D, the formula is of D is B square minus 4AC. अभी क्या होता है कि Going back to that particular chapter, linear equation in two variables, जब हम उसको solve करते थे ना तो हमें 3 अलग अलग तरह के solutions मिलते थे, unique solution, no solution, infinitely many solution. Exactly in the same manner जब हम यहाँ पे quadratic equation को solve करते हैं, then again it is not possible to solve every quadratic equation. इसमें क्या होता है, 3 अलग अलग तरह के roots होते हैं. So kinds of roots are there. Firstly, the first one is your real unequal roots. Real unequal roots. ये कब होता है real unequal roots? When D is greater than 0. तो ये हो जाता है the situation is of real unequal roots. Real unequal roots मतलब के real numbers होते हैं and the two values of x will differ from one another. Unequal होते हैं. ये कब होता है? When D is greater than 0. The second case is real equal roots. Equal roots का मतलब क्या हो जाता है? ये तब होता है जब D की वैल्यू is equals to 0 हो जाती है, exactly 0 हो जाती है, तो फिर वो real equal roots हो जाते हैं. इसमें क्या होता है that the values of x will the two values of x will be equal to one another. And the third one is unreal, या फिर उसको imaginary roots भी कहते हैं. मतलब इस कंडीशन में अनरियल या इमेजिनरी रूट्स कब होता है? जब d की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होती है. स्मॉलर देन 0 मींस द नेगेटिव वैल्यू, यू गेट द नेगेटिव वैल्यू. तो d की वैल्यू कभी अगर नेगेटिव आ जाती है विच इज स्मॉलर देन 0, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते. दैट इज अनरियल और इमेजिनरी रूट, सॉल्व नहीं हो सकता. ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड
कि कितने टाइप के हमारे जो है वो रूट्स होते हैं, रियल रूट्स, रियल अनइक्वल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स एंड अनरियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। अगर के रियल रूट्स है या रियल में दोनों में से कोई भी अनइक्वल है या इक्वल रूट्स है, देन हाउ वी हैव टू सॉल्व देम। सॉल्व कैसे करा जाएगा, फाइंड आउट कैसे करेंगे वैल्यूज को, इनकी वैल्यूज निकाल, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। सो वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर फैक्टराइजेशन। First one is your factorization method. Factorization method, also known as splitting middle term method, है ना, पता है आप लोगों को splitting the middle term method भी बोलते हैं. That also is known as factorization method. The second one is your formula method. अगेन इन द क्वेश्चन इफ इट इज नॉट गिवन तो फिर आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, बट इट इज इफ इट इज स्पेसिफाइड कि आपको ये वाला मेथड यूज करना है तो फिर वही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा. फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. एक तो पहले तो आप लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं. दिस इज द वे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी. डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ डी फिर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट अप कर देते हैं. द फॉर्मूला सेज दैट x इज इक्वल्स टू, x मींस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d होल अपॉन 2a. दिस इज द फॉर्मूला. अब ये प्लस माइनस का क्या फंड है, माइनस बी तो चलो ठीक है समझ में आया, अंडर रूट ऑफ डी मतलब ये जो वैल्यू डी की आ रही है उसको हमने रूट कर दिया, दैट आल्सो इज ओके. होल अपॉन 2a, a मतलब के द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस माइनस. प्लस माइनस का मतलब होता है इसको हमें दो बार सॉल्व करना है. एक बार प्लस रूट डी करके सॉल्व करना है, एक बार माइनस रूट डी करके सॉल्व करना है. मतलब कि अगर हम इसको ब्रेक करें तो फर्स्टली हमें x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a हो जाएगा, एंड सेकेंडली ये हो जाएगा आपका b वाले पार्ट में हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a. ये हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला मेथड है ना ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये चैप्टर के अंदर कुल मिला के इतना ही है. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड द एंटायर फंडामेंटल. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी लेस, कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं. और आई होप सो कि आप लोगों को ये पूरा फंडामेंटल समझ में आ गया होगा, है ना. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.